اب اس کو یہاں سے بند ہی کروا دیے برائے ادھر سے اس کو یہاں سے بند کر دیں گے. پنکھا بھی بند کر دیں. اچھا یہ پنکھا بند کر لیں یا چلے گا؟ پنکھے سے اس کا پرابلم تو نہیں ہوگا آپ کا کسی چیز کا؟ ایسے ہی کچھ یہ بنائے گی کہیں سے انہوں نے خاص. میں آپ سب کا اسلام آباد کے ساتھیوں کا اسلام آباد کے ساتھیوں کا صحافیوں کا بہت شکر گزار ہوں. صدام ایسے رکھو اس کو، ایسے رکھو کہ آج آپ سب تشریف لے کر آئے اور میرے ساتھ ہمارے سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب جو الحمدللہ لاڑکانہ سے ہمارے سینیٹر ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں. میں اسلام آباد میں تھا 4-5 روز اور میں نے ضروری سمجھا کہ ہمارا سندھ کے تحریک پیپلز پارٹی کے جو لیڈر صاحب ہیں جس انداز سے وہ سندھ میں چھوڑ کے سندھ میں نقل جاری ہے، سندھ میں بوٹی مافیا چل رہی ہے، سندھ میں تعلیم مطلب پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں، 2 بھیل کا کیس بن رہا ہے، سندھ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا اور وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر میں آ گئے. تو میں نے ضروری سمجھا کہ اسلام آباد کے صحافیوں کو کچھ بتا دوں. تو بات یہ ہے کہ اور دوسری مطلب افسوس نہیں ہے کہ آج ماشاءاللہ یہ جاتی عمرہ کی پھولن دیوی اور ہمارے لاڑکانہ کے بوبی یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پہنچے ہوئے ہیں. جاتی عمرہ کی پھولن دیوی کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حیثیت یہ رہ گئی ہے جیسے فلم میں ایکسٹراز ہوتے ہیں کہ جب ضرورت پہنچتی ہے تو وہ میدان میں آتے ہیں. ایکسٹراز جو ہے ہیروئن سے زیادہ ڈانس کر رہی ہوتی ہے. ایکسٹرا جو اداکار ہوتا ہے اس کی پھرتیاں زیادہ ہوتی ہیں جبکہ وہ اس کا فسانے میں ذکر نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہماری جاتی عمرہ کی پھولن دیوی جس انداز سے جو زبان یہ اس کشمیر میں جا کے استعمال کر رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اگر یہ میں بالکل اور پتہ نہیں کیا کیا کشمیر فروش اور کیا کیا کہا جا رہا ہے. جاتی عمرہ کی پھولن دیوی کہہ رہی ہیں کشمیر فروش، ہمارے لاڑکانہ کے جو بیبی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ جانے سلیکٹڈ، ناجائز، نہ جانے کیا کیا ہے. بات یہ ہے کہ آج سیاست میں انہوں نے اقدار ختم کر دی ہے، اخلاق ختم کر دیے ہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا نقصان کشمیر میں بیٹھ کر یہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے سوچا نہیں کہ ان جملوں سے کہ ایک وزیر اعظم کو جس زبان سے استعمال کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں سلیکٹڈ سلیکٹڈ سلیکٹڈ. الحمدللہ عمران خان صاحب الیکٹڈ ہیں پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی جانب سے اور سلیکٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اس میں کہنا چاہتا ہوں ان نالائقوں کی حکمرانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ایک اچھا حکمران سلیکٹ کیا اور عوام نے اس کو الیکٹ کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جاتی عمرہ کی پھولن دیوی صاحبہ کا ابا حضور اور چاچا حضور اور کزن حضور خود سمیت یہ لوگ کرپشن سے انفیکٹڈ ہیں، عوام کی جانب سے ریجیکٹڈ ہیں اور ہمارا سندھ والا تو بیچارہ ڈیفیکٹڈ ہے، اس کا تو میں کیا کہوں. اور ادھر آ کے ریجیکٹڈ، انفیکٹڈ اور ڈیفیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ جا کے کشمیر میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کشمیر کا مقدمہ جس انداز سے ہمارے کپتان عمران خان نے کشمیر کا جو مقدمہ لڑا ہے، جس انداز سے انہوں نے کشمیر پر عمران خان صاحب نے بات کی ہے اس کے اوپر صرف چھوڑیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے. ٹی آر ٹی ٹی وی
ٹرکش ٹی وی جو کہ ان کا نیشنل ٹی وی ہے، اس کے علاوہ الجزیرہ اور دنیا کے اخبارات بول رہے ہیں اور ٹی وی رپورٹس کر رہے ہیں. یہ ٹی آر ٹی ورلڈ کلیم کی ہے. ٹی آر ٹی ورلڈ کلیمز دیٹ پی ایم آئی کے از دا موسٹ پاپولر پرسنالٹی بائی فار ان انڈین آکوپائڈ کشمیر. یہ ٹی آر ٹی ورلڈ انڈیا ترکی کا آفیشیل ٹی وی کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ڈیو ٹو آئی کے اسٹرانگ اینڈ بریو اسٹینڈس آن کشمیر, کشمیری ہیو اسٹارٹیڈ ٹو بلیو ان پاکستان اگین, a belief that had lost due to the weak policies of previous government. یہ بھی ٹرکش ٹی وی کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو پاکستان پر اعتماد بحال ہو گیا ہے عمران خان کے آنے کے بعد. پہلے جو اعتماد یہ لوگ کھو چکے تھے. اور عمران خان صاحب کی on September 27, the day Imran Khan delivered his speech at United Nations General Assembly, most of which focused on Kashmir. وہ یہ باہر کے چینلز کہہ رہے ہیں, الجزیرہ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ نواز شریف صاحب نے, میں اوروں کا بتاتا ہوں آپ کو, 2016 میں انہوں نے جب وہ برہان وانی صاحب کی جب شہادت ہوئی, اس کے بعد انہوں نے جب یہ یونائٹڈ نیشن میں گئے تو انہوں نے لفظ ہی لیے, ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے, ان کے کشمیر کا ذکر تک نہیں ہوا. اور جب یہ انڈیا جاتے ہیں کشمیری رہنماؤں سے ملنے سے انکار کرتے ہیں نواز شریف صاحب. سچن جندال سے مل لیتے ہیں, وہ اپنے بزنس پارٹنر سے مل لیتے ہیں, لیکن کشمیری لیڈر سے ملنے کو یہ انکار کر دیتے. تو راج اس کی ایک وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ریجیکٹڈ جو ایک ان کی جو پھولن دیوی ہیں, وہ آج جا کے بتاتی ہے کشمیر کو ہم یہ کرائیں گے. آپ تو کشمیری لیڈر سے ملنے کو تیار نہیں ہوتے ہو, وہاں سچن جندال سے پورے بیٹوں سمیت اپنی بزنس ڈیلز کر رہے ہوتے ہو. جہاں ہماری عزتوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہوتی ہیں, ادھر آپ مودی کی ماں کو ساڑی بھجوا رہے ہوتے ہو. ادھر ہمارے کشمیر میں خون سے لال ہو رہی ہوتی ہیں وہاں کی سڑکیں, آپ ریڈ کارپٹ پہ مودی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہو. یہ تو نواز شریف کا مکروہ چہرہ ہے. پی ایم ایل این کشمیری, کبھی بینچ ہے تو میں گوال منڈی کا ہوں, کبھی کہتے ہیں کہ میں رائے کا ہوں, اور کبھی کہتے ہیں کہ میں کشمیری بن گیا ہوں. تو میں کہنا چاہتا ہوں 2016 میں نواز شریف نے یہ کیا تھا. اس کے بعد یہ تین لوگ جو ہے, نواز شریف, زرداری, بی بی, تمام دونوں پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے, انہوں نے کبھی بھی کشمیر میں ٹیررزم کے خلاف, جو انڈین جو ہماری جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں ٹیررزم کے خلاف انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. اور میں کہنا چاہتا ہوں 2016 میں انہوں نے ایک وفد بھجوایا تھا, اتنے نان سیریسنیس تھی ان کی, اتنے فضول کہ وہاں کے اسی وفد سے کوئی ملنے کو تیار نہیں تھا امریکہ کے اندر. اور آج یہ بات کرتے ہیں کو نواز شریف صاحب. تو میں کہنا چاہتا ہوں, دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں, میں اصل اپنے سندھ کے بلاول صاحب کے اوپر آتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بلاول صاحب جتنے معصوم اتنے نظر آتے ہیں, تو اصولی طور پہ تو ہم ڈھونڈنے نکلے ہیں. ہمارے سندھ کے عوام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ سنا ہے وہ پہاڑوں پہ جا کے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوتا ہے. وہ سندھ سے لاڑکانہ سے نکلا ہے, پہاڑوں پہ پہنچ گیا ہے, بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے, اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, اور اس کے بعد غلطی سے واپسی میں اس میں بیٹھنے کے بجائے کراچی کے جہاز میں لگتا ہے امریکہ پر چلا گیا ہے. مطلب بلاول زرداری ایک نان سیریس, وہ ہاتھ ہلانے سے, کفن یہ کلف ایسے کرنے سے بھٹو نہیں بن جاؤ گے. بھٹو بننے کے لیے بھٹو ہونا ضروری ہوتا ہے, زرداری بھٹو نہیں بن سکتا ہے. اور دوسری بات ہمیں ایک اور چیز پتہ چلی ہے کہ ایک مراد علی شاہ صاحب جو کہ لابیسٹ فرم انگیج کرنے گئے ہیں, خود گئے امریکہ, جہاز دے دیا بلاول زرداری صاحب کو. یہ 13 سال کے اندر سندھ کا جہاز اور ہیلی کاپٹر چنچی رکشہ کی طرح چلا ہے, W11 کی طرح چلا ہے, کرائے کے رکشے کی طرح چلا ہے, کرائے کی ٹیکسی کی طرح چلا ہے. اور وہ شازیہ بی بی فرماتی ہیں کہ بلاول نے منسٹروں سے لفٹ لے لی تھی. ارے بھائی ایسے کر کے کہا تھا کہ لفٹ چاہیے کوئی بٹھا لو, بھائی ہمیں بھی لفٹ دے دیا کرو. ابڑو صاحب بھی آتے ہیں سینٹ کے اجلاس میں, ان کو بھی لفٹ دے دیا کرو. میں بھی ہر 15 دن بعد اسلام آباد آتا ہوں, آپ کو لفٹ ملی, آپ بھی سندھ سے آتے ہو. وہ جہاز جو ہے, مطلب وہ جہاز ان کی عیاشیوں کے لیے ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس جہاز کے اوپر بھی میں نے کل میں منسٹر سول ایویشن سے, سیکٹری ایویشن سے, ہم نے انشاءاللہ 13 سال میں جو سندھ کے جہاز انہوں نے غلط استعمال کیے ان کا انشاءاللہ حساب کتاب ہوگا. اور یہ وہ سی وی ہے, یہ خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی نے تیار کرائی ہے اپنے آنے والے لیڈر کے لیے. اور مراد علی شاہ یہ سی وی لے کر امریکہ گئے ہیں, پہلے ایڈوانس پارٹی, اور یہ ایڈوانس پارٹی جو ہے بلاول صاحب کی یہ سی وی, یہ پیپل پارٹی نے بنا, ہمیں تو گھومتے پھرتے کہیں سے سوشل میڈیا سے سی وی مل گئی ہے. یہ خصوصی طور پہ سی وی تیار کرائی گئی ہے, اور آپ نے پڑھا ہوگا اس سی وی کے چند چیزیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ایز پاکستانی کرنٹ گورنمنٹ will not bow down to the West. I am here to facilitate your demand.
I can be refused, trusted uh, by the work since my party facilitated over 340 US drones in Pakistan during its tenure. یہ بات کرتے ہیں کشمیر کی, بات کرتے ہیں کھڑے ہونے کی. میں سمجھتا ہوں کہ جی سی وی بڑی ضروری ہے جی, بڑی کام کی سی وی ہے. یہ ہمارے لاڑکانہ کے ماشاءاللہ ایک ہمارا بیبی گیا ہے یہاں, یہ سی وی پہلے بھیج دی گئی ہے. اس سی وی میں بتایا گیا ہے کہ میں آپ کو زیادہ کام کر سکتا ہوں. زرداری صاحب نے 340 ڈرون کر حملے کرائے تھے. ہور حکم کرو, ساڈے لائی کوئی حکم, بیو کو حکم, ہمارے لائق ہم حاضر ہیں. بات یہ ہے کہ وہ لوگ, وہ امریکہ, پہلی دفعہ کوئی ورلڈ لیڈر, کوئی مسلمان لیڈر آیا جس نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ. پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے. نہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہیں گے وائی ناٹ, ڈرون مارنا ہے وائی ناٹ, اڈے چاہیے وائی ناٹ. یہ ایبسلوٹلی ناٹ کرنے کے لیے دین ایمان پر پختہ ہونا چاہیے, لیڈر ہونا چاہیے, ویژن ہونا چاہیے. اور آج جب امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے اور یہ امریکہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کے 8,900 ارب روپے لوٹ کے اندر 2,000 ارب سے زیادہ کی کرپشن کرنے کے بعد آج امریکہ میں جا کر لابیسٹ فرمز جو استعمال کی جا رہی ہیں. نواز شریف کی بات کرتے ہیں, کس موقع پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ان دونوں پارٹیز نے کیا نہیں کیا. پاکستان تو کس نے توڑا, ثبوت موجود ہے کس پارٹی نے توڑا. نواز شریف نے کس موقع پر, جب یہاں انڈین صدر آتا ہے تو یہاں پرائم منسٹر آتا ہے تو کشمیر ہاؤس کا بورڈ ہٹا دیے جاتے ہیں. یہاں سے انڈیا جاتے ہیں, کشمیری لیڈر سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اس ریجیکٹڈ, انفیکٹڈ اور ڈیفیکٹڈ لیڈرشپ کو پاکستان کے عوام چھوڑ چکے ہیں. اور ایک اور چیز تاریخ یاد رکھیں, ممبئی حملوں میں پاکستان کا ہاتھ ہے نواز شریف. بمبئی حملوں میں پاکستان کا ہاتھ ہے نواز شریف. یہ لیڈ ہے بہت بڑی اخبار کے اندر لیڈ ہے. اور حکومت ملی تو آئی ایس آئی آرمی سے تحقیقات کریں گے. یہ فرما رہے ہیں کہ جی حکومت ملی تو آئی ایس آئی سے تحقیقات کریں گے. بھارت کو شاباش, کارگل کمیشن بنایا, یہاں کوئی انکوائری نہیں ہوتی. بھارت کہہ رہے ہیں جی بڑی شاباش ہے. اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ, اور اس کے بعد بھارت کے آئی جی کا, انڈیا کے بھارتی انسپیکٹر جنرل کا بیان آئے, اجمل قصاب ممبئی حملوں سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کو نیپال سے گرفتار کر کے بھارت لایا گیا اور جان بوجھ کر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بمبئی والے کیس میں اسے سزا دی گئی. یہ ہم نہیں, بھارت کا 21 گریڈ کا سابق آئی جی کہہ رہے ہیں. اور میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پاکستانی دہشت گردوں نے ممبئی حملوں میں کردار ادا کیا. اور یہ نواز شریف نے تسلیم کیا. ہندوستان ٹائمز نے سرخی لگائی, اور ماشاءاللہ ہمارے جو میر جعفر, میر صادق, میر دوسرے والے, انہوں نے جا کے گھر بھی دکھا دیے جعلی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کے لیے, اپنی خاندان کے لیے, اپنے پیسے کے لیے پاکستان کو انہوں نے یہاں پہنچایا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں آج پورے پاکستان کو جان لینا چاہیے کہ یہ وہ پاکستان دشمن ہے. یہ کہتے ہیں کشمیر فروش, یہ ضمیر فروش لوگ ہیں, یہ وطن فروش لوگ ہیں. یہ گلگت بلتستان میں بھی جا کے ٹھنڈی ہوائیں کھانے پہنچ گئے تھے. اب یہ دونوں کشمیر میں جا کے ایک فرسٹ لینگویج استعمال کر رہے ہیں. میں کہنا شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے. اس زبان استعمال کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ڈیلیوری کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے. اور سندھ سے بلاول زرداری بات کرتے ہیں. بلاول زرداری اچھا ہوا, میں نے مشورہ دیا تھا ٹویٹ کے اندر کہ ادھر بھی نہ کہہ دینا کہ جیسے گلگت میں کہا تھا کہ ہم گلگت کو لاڑکانہ بنا دیں گے, فارغ کر دیا لوگوں نے. میں نے مشورہ دیا کہ غلطی سے بھی نہ کہہ دینا کہ گلگت کو, کشمیر کو لاڑکانہ بنا دیں گے یا کشمیر کو سندھ بنا دیں گے. تو بھائی اگر کشمیر کو لاڑکانہ یا سندھ بنانے کا کہہ دیا تو پتہ چلے گا کہ سندھ والوں کو کتے کھا گئے. 13 سال سے کتے جھنجھوڑ رہے ہیں سندھ کو, 13 سال سے کتے جھنجھوڑ رہے ہیں. لاڑکانہ کو 13 سال سے ایٹ لگ گئی ہے, تھر میں ہزاروں بچے مر گئے ہیں, روڈیں تباہ ہو گئی ہیں, رستے تباہ ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے. کشمیر والوں جاگتے رہنا, ذرا ہم سے معلومات کر لینا, ذرا ایک چکر لاڑکانہ سے لے کے کراچی اور کراچی سے لے کے گھوٹکی آ جانا, پتہ چلے گا کہ سندھ کے اندر بڑی ترقی ہو گئی ہے. بلاول کے سندھ میں وہاں چنچی کی ایمبولینس ہے, گدا گاڑی کی ایمبولینس ہے, خود جہاز لفٹ کے اوپر بھی دے دیا جاتا ہے دوسروں کو. غریب کو سندھ میں ایمبولینس نہیں ملتی ہے, غریب کو دوائی نہیں ملتی ہے. اور یہ یہاں کے بات کر رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم معاف نہیں کریں گے بلاول زرداری جیسے ڈیفیکٹڈ لیڈر کو. اور مریم یہ پھولن دیوی جو ہے,
ये रायविंड महल की फूलन देवी जैसी इन करप्शन से इन्फेक्टेड लीडर को हम इनको आगे चलने दें। अबड़ो साहब जरा बात करेंगे, फिर मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। अबड़ो साहब लाड़काना से हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जो आप ढूंढने आए हैं, बच्चा ढूंढने आया, कह रहे घूम गया पहाड़ों में, घूम गया, बेकी बेकी बातें कर रहा है, किसी को मिले तो पहुंचा दो भाई, बिलावल हाउस पहुंचा दो। वो गलती से अमेरिका भी चला गया जहाज में बैठ के। तो मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तानी कौम, आप पाकिस्तानी कौम का सौदा नहीं कर सकते। ये डॉन लीग्स की रानी और मेमो गेट के जो शहजादे हैं, मैं कहना चाहता हूं ये डॉन लीग्स की पैदावार है, ये मेमो गेट के शहजादे। डॉन लीग की रानी और मेमो गेट का शहजादा पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम ऐसे लोगों को मुल्क में मुसल्लत नहीं होने देगी। अबड़ो साहब, थैंक यू। आगे एक्चुअली जो रिसेंटली स्टेटमेंट्स आई हैं कश्मीर में, बिलावल जरदारी की, मरियम सफदर की, वो कश्मीर के जो इलेक्शंस हो रहे हैं एक्चुअली उसी के सिलसिले में वो वहाँ गए हुए हैं। बुनियादी तौर पे उनका जो ये तरीका है, जो लहजा है, क्योंकि अलीम भाई ने काफ़ी चीज़ों पर रोशनी डाली है तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जो फैक्ट फिगर हैं उनके पीछे कि वो बात क्या करना चाहते हैं, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, खान साहब के अगेंस्ट ऐसी जो है वो लैंग्वेज यूज़ करके। कश्मीर के इलेक्शन शायद अभी उनके लिए कोई आखिरी उम्मीद है इस टेन्योर में, जो हमारे पीटीआई का टेन्योर है, जो वो पहले से हमारी गवर्नमेंट को कहते आए हैं शुरू से कि नाल भी है, नाजायज़ भी है, नालायक भी है, तो वो अपनी लायकी, अपने को जायज़ और अहल साबित करने के लिए बहुत सारी पहले दावे करते रहे हैं। आपने देखा जब से कोई पहला बजट आया, बाकी चीज़ें पहले भी हुई हैं, जैसे नए पीएम का इलेक्शन हुआ 2018 में, तो उस पर भी इन सब पार्टियों ने मिल के अपने उम्मीदवार खड़े किए, इनको शिकस्त दी। फिर आपने देखा हर बजट आया उस पर तमाशा लगाया, ये बजट नहीं होने देंगे, हर बजट में उनको रसवाई हुई। फिर वो चले गए, आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान कि ये हम ये जीत लेंगे, पीडीएम थी, आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, 2-3 सीटें उनको मिली। अभी जो बजट आया 2021 का, 21-22 का, उसमें आपने देखा इन्होंने कहा कि ये तो होने ही नहीं देना हमने कभी भी। ये माजी में हमने सुना था जब फिल्में चलती थी, सुल्तान राय कहता था नहीं चढ़ांगा, तो ये भी उसी की कड़ी थी इन सारे लीडरशिप की कि हम साथ मिल के ये बजट पास नहीं होने देंगे। आपने देखा 132 मेंबर्स थे उनके टोटल, लिहाजा अभी इनके पास 25 जुलाई का दिन ही बचा है, वो कश्मीर। ये कश्मीर में ऐसी लैंग्वेज यूज़ करके ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं पहले कि बदतमीज़ाना। देखिए ये टीवी चैनल्स पे आते हैं, टीवी चैनल्स पे आके बड़े मासूम बनते हैं कि हमें गालियाँ मिल रही हैं पीटीआई की तरफ से। पीटीआई कभी भी ऐसे इनको हार्ड हिट नहीं करती जब तक इनके अपने ऐसे रवैये नहीं होते। आप उस लीडर के लिए खिलाफ बात करते हैं जिसकी ईमानदारी पे, अपनी पार्टी को तो छोड़ें, आपके लोग भी उस पर बात नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है हमारे पब्लिक की कि इमरान खान साहब जैसा हमें पीएम मिला। और आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कश्मीर को? कश्मीर आपको नहीं जानता। बिलावल जरदारी दावा कर रहा है कि हमारे साथ रिगिंग हो जाएगी। भाई आपकी सीट्स ही 8 हैं टोटल। कल भी वो कह रहा था हम हुकूमत बनाएंगे, कैसे बनाएगा? एक फैक्ट फिगर होती है ना। मुझे तो कभी कभी अफसोस होता है, मैं लाड़काना से बिलोंग भी करता हूँ, इंटीरियर सिंध से मैं वाहिद सेनेटर हूँ पीटीआई का, और जो सेनेट के इलेक्शन में तमाशा हुआ वो आप सब दोस्तों ने देखा होगा, जैसे उन्होंने मुझे अपोज किया। उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि मैं बिलोंग करता हूँ इंटीरियर सिंध से, मैं इनकी एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। शायद आपके दोस्त कुछ साहब ही वहाँ सेनेट में आए होंगे, जो मैंने सेनेट में स्पीच की थी 33 मिनट की, तो ये खुद को बड़ा लीडर समझते हैं। गिलानी भी था, रब्बानी भी था, शीरी भी थी, ताज हैदर भी था, चांडियो भी था, सारे थे 17 सेनेटर्स फ्रॉम सिंध। इनके साथ नून लीग ने किया। ये ऐसे भागे, ये सुन नहीं पाए मेरी स्पीच। अभी भी वो होगी रिकॉर्ड पे, जो दोस्त वहाँ होंगे। मैंने तो इनको वहाँ एक्सपोज किया कि भाई ये यहाँ जो जमहूरी बातें करते हैं वो ऐसे नहीं है, इन्होंने सिंध तबाह कर दिया है। जैसे देखें बिलावल साहब अभी कह रहा है कि हम कश्मीर को बनाएंगे। मैं बिलावल जरदारी से पूछना चाहता हूँ कि आपने सिंध बना लिया? कौन सा सिंध आपने बनाया है?
अच्छा, पहले तो ये है कि आपकी हुकूमत कैसे आएगी? 8 सीटों पे कौन सा जाहिल आपको एडवाइस करता है कि आपकी हुकूमत बनेगी? या कश्मीर का आवाम, या पाकिस्तान का आवाम, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स या पॉलिटिशियंस, वो ऐसे बेवकूफ़ हो गए कि आपकी इस आम रवाजी बातों में आ जाएंगे। 8 सीटों पे कुछ नहीं होता। 8 भी वो हैं कि आपके 2 या 3 इलेक्टेबल हैं। इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट किया था, जब प्रीवियस इलेक्शन हुआ था कश्मीर का, तो ये अपनी खाला के साथ वहाँ गया था कैंपेन में। वो खाला इसको आहिस्ता आहिस्ता फरियाल टाल पर इसको आगे कर रही थी कि शायद आप बेटा हम आपको थोड़ा आगे कर देते हैं, आपको बड़ी अपनी अपनी जो अहलियत है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो हम आप में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको खाला लेके गई थी वहाँ। तो खाला ने किया क्या वहाँ? 2 सीटें आई कश्मीर से इनकी टोटल। वो तो इबरत का मकाम था इनके लिए, क्योंकि इससे पहले चौधरी मजीद था पीएम। जब 2011 में इलेक्शन हुए तो चौधरी मजीद था इनका पीएम। तो आपने 2015 में या 16 में आके कैसे वो अपनी सारी सीटें आपने गंवाई? ये सबूत है कि कश्मीर का अवाम आपसे नफरत करता है। कश्मीर पे आपने ठीके पे दिया था। कश्मीर की जो हुकूमत थी वो भी वहाँ एक ऐसा ही बंदा जैसे सिंध में एक एक डिपार्टमेंट ठीके पे दिया हुआ है। आप बेटा क्या है, ये बजट है, ये मैं बजट कापी लाया हूँ, ये वो कापियाँ हैं जिसको पीपी देख के भाग गई थी सेनेट से। ये फैक्ट फिगर्स हैं। ये सिंध गवर्नमेंट का बजट है। ये ऐसे ही 47 जो हैं ये बुक्स हैं, ये 47 चैप्टर्स हैं ऐसे। मैं सिर्फ ये 4 लेके गया सेनेट में, ये 4 नहीं सुन पाए। तो उसकी वजह क्या होती थी? मैं उसमें भी 5 मिनट आपका टाइम लूँगा ताकि फैक्ट फिगर आ जाए पब्लिक के सामने कि इन्होंने सिंध के साथ क्या किया है। तो कश्मीर को कौन सा ये वहाँ जाके आबाद करेंगे, कश्मीर में इनकलाब लाएंगे? प्योरली जब प्रीवियस गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी तब भी इन्होंने कश्मीर किसी एक बंदे को ठीके पे दिया था, जिसकी वजह से पीएम लगा। वो बंदे पीएम और सदर कश्मीर के वो दोनों उसको ताबे होते थे। जैसे सिंध में डिपार्टमेंट इन्होंने ठीके पे दे दिए हैं कि हाँ बेटा ये मिनिस्ट्री आप ले जाओ, ये बजट है आपका, साल में आपने पैसे इस पे कितने देने हैं। वहाँ तो ये रवाज है। तो कश्मीर के अवाम, जैसे गिलगित के अवाम ने फैसला किया, तो कश्मीर का अवाम इनकी बातों में नहीं आएगा। आपको हैरत हो, मैं कश्मीर के दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि इनसे लाड़काना नहीं बन पा रहा। आप बजट बुक देखें, पेज नंबर 86, स्कीम नंबर 164, 165, 166, these are 3 schemes from the education department. Total cost not more than 2.3 billion. 2008 में ये अप्रूव हुई है। 2021 तक 460 इसमें स्कूल्स हैं। जो बेसिक जो हमारी नीड है पाकिस्तान के अवाम की, एजुकेशन, हेल्थ, ये मैं सिर्फ एक आपको उनका कारनामा बता रहा हूँ। और लाड़काना जो उनका सियासी किबला है, जिसको ये हाईलाइट करते हैं, जिसको ब्लैकमेलिंग का ये ज़रिया बनाते हैं पूरे अवाम के लिए। तो वहाँ 460 स्कूल्स जो रिहेबिलिटेट होने हैं, 2008 में मंसूबा पास होता है। 2.3 बिलियन के 3 स्कीमें हैं, वो इनसे नहीं बन पा रही। तो ये कश्मीर को क्या देंगे? आपने कहाँ देखा है कि जो हमारे वेस्टेज प्लांट यहाँ इस्लामाबाद में है, को बीच शहर में हूँ, मैं आपको लाड़काना लेके चलता हूँ। लाड़काना में 26 एकड़ एक ज़मीन है मोहम्मद उमर चांडियों की। वो ज़मीन 3 लाख रुपए पर एकड़ उसकी कास्ट है। वो इनके लोगों ने उनसे छीननी चाहिए, उसने नहीं दी। इन्होंने पब्लिक हेल्थ से स्कीम अप्रूव करा के उसको वेस्टेज वाटर प्लांट बना दिए बीच शहर में। ये जो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान को बड़ा सरसब्ज और शादाब बनाएंगे, लाड़काना का पब्लिक, लाड़काना का अवाम उस बदबू से जान छुड़ाने को तैयार है, लेकिन ये छोड़ते नहीं। वो पानी आता है, उसको बाहर भी ड्रेन ऑफ नहीं करते। वो वहाँ बीच तालाब बना दिए। मज़े की चीज़ आपको इन्फॉर्म करूं कि साथ उसके ड्रेन जा रही है। नॉर्मली तो ड्रेन में पानी जाता है। मैं आप दोस्तों को दावत देता हूं, मैं आप 5, 6, 10 लोग मैं इनवाइट करता हूं आपको, आप लाड़काना लेके चलूं, आप लाड़काना का अशर देखें। गड़ी खुदाबश की इनकी स्कीमें नहीं बनी 8-8 साल से। लाड़काना की हेल्थ डिपार्टमेंट की 5 स्कीमें हैं, टोटल कास्ट नॉट मोर देन 500 मिलियन। वो पिछले 2010 से वो स्टार्ट हुई हैं। आज 2010 साल में वो 500 मिलियन मीन्स 50 करोड़ उनसे पैसे नहीं हो रहे। ये टारगेट करते हैं, ये वहाँ काम करवाते हैं जहाँ इनको पैसे चाहिए। तो कश्मीर के अवाम इनको जानते हैं, इनका असल चेहरा भी जानते हैं। देखिए ऐसी ऐसी बातें, कल जैसे मरियम सफदर कह रहे थे कि जी खान साहब ने तो IMF के पास पाकिस्तान को तबाह कर दिया, गिरवी रख दिया। मेरे बाप ने, नवाज शरीफ ने
IMF से आज़ादी ले ली थी। अभी ये देखिए, ये बड़ा मजाक है ये कश्मीर के अवाम के साथ कि आप 2018 में IMF के कुछ पैसे नहीं थे पाकिस्तान पे। अगर इतने झूठ आप बोलेंगे तो आप खान का मुकाबला नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कोई भी अज़ाइम नहीं है ज़ाती कि कहीं भी उनको अपने फ़ायदे लेने या कोई चीज़ लेनी है। ये दो छोटे बच्चे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, कभी अपने कफ खोल के, कभी अपना गला फाड़ के बदतमीज़ी से बात करने का। तो फिर मैं पाकिस्तान और आप दोस्तों की सारी जो मीडिया के आपके नुमाइंदे, मैं सबको अपील करता हूं कि जब इनके लीडर्स आते हैं टॉक शोज़ में तो इनको तमीज़ भी सिखाई जाए कि जब आप गालियां देंगे तो हमारे लोग आपको उससे ज़्यादा हार्ड हिट करेंगे। फिर आप तक ये CV आपने भिजवाई है ना, हमने तो नहीं भिजवाई। ये मुराद शाह साहब CV लेके वहाँ चला गया है पहले। भाई ये CV लेके आप क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? ही इज़ एफिशिएंट पर्सन हु इज़ कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन फ्यूचर। ये PM बनेगा जिसको बात करने नहीं आती, जो कहता है। देखें, अगर हमारा कोई लीडर कहता है तो हमें तो लोग जो है मलामत करते। अब ये हालत है जिसको ये पता नहीं होता कि ये आलू 200 रुपये दर्जन हैं, अंडे 200 रुपये किलो हैं। अगर ये हमारे PTI का कोई कहता तो हम आपके सामने भी नहीं आ सकते, लेकिन किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। पूछना चाहिए। बीइंग एज अ पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसी लीडरशिप जो ख्वाब देख रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनूंगा 23 में, उसके बाद वो कह रहा है नहीं बना तो 28 में। हम तो कहते हैं कि तुम चाहे 3000 में बन जाओ, जब भी बन जाओ, हमारी जान छोड़ो। ये पाकिस्तान इस ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान के आप जैसी लीडरशिप जो बच्चों पे चले। आपको ये पता नहीं, जालिम है इसका जो है एडवाइज़र, जिसने इसको लिख के दिया कि आलू जो हैं वो 200 रुपये दर्जन मिलते हैं। उसके एडवाइज़र ने लिखा होगा ना। और जालिम है वो एडवाइज़र जिसने इसको लिख के दिया कि जो अंडे हैं वो 200 रुपये किलो मिलते हैं। तो जिसको ये पता नहीं कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है इन चीज़ों में कि क्या है, वो पाकिस्तान चलाएगा। हम कभी भी इसको इजाज़त नहीं देंगे। आप सब दोस्तों की मेहरबानी। मैं एक मिनट मैं आपको बताऊं, हम 2 महीने से बिलावल ज़रदारी को ढूंढ रहे हैं। तो मैं 1 मिनट लूँगा आपका। 2 महीने से हलीम भाई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सिंध असेंबली कराची में कि भाई आप बड़े लीडर बनते हो, आप बड़े जो है वो इनकलाबी बन गए हैं, हमें 2 चीज़ों का हिसाब चाहिए। जो सिंध के गरीब आवाम का पैसा लाड़काना के अनवर पैलेस जो सोहेल अनवर सयाल आपके मिनिस्टर हैं उसका बना हुआ है, शर्जील मेमन का जो हैदराबाद में रावल महल है, हमें उसका हिसाब चाहिए। बिलावल इस लायक नहीं है कि उसने अभी तक उसका जवाब दे सका। हम उसको पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, उससे जवाब लेंगे। इलेक्शन कैंपेन में ही गुजरा नहीं, जाके पैसे काटने से एक बात। दूसरा सवाल ये कि कल सिंध के वजीर पानी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा पानी चोरी कर लिया वफाक ने। आप वफाकी गवर्नमेंट में बैठे हैं, क्या सिंध के किसानों की आवाज़ आपने अपने प्राइम मिनिस्टर से बात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपने फरमाया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की, देखें कश्मीर में हमारी हुकूमत नहीं है, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर नून लीग के हैं। और कल जो कुछ हुआ उसका मतलब अच्छा मैसेज नहीं है, इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई सरकारी फ़ंड इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर वहाँ जा रहे हों, इन नायनों की हुकूमत 15-20 साल से कश्मीर के अंदर भी ये लोग हुकूमत करते रहे, वहाँ भी आज तक खड्डे बने हुए हैं। अगर ज़ाती तौर पे अपनी जेब से, अपने फ़ंड से अगर किसी को उन्होंने कुछ पैसे दे दिए तो सरकारी सतह पर किया जाता तो बहुत गलत था। ज़ाती तौर पर अगर किसी गांव वाले को, किसी गरीब को उन्होंने कोई मदद कर दी तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लोग आते हैं, लोगों को देना पड़ता है। चूँकि इन्होंने तो वो पैसा जो गया था कश्मीर वाला पैसा, वो उनके रायमंड चला गया, उसका हिस्सा बाहर चला गया, लंदन भिजवा दिया। लेकिन जो उन्होंने किया तो हमारे गरीब परवर लोग हैं, वज़रा जो है उन्होंने अपनी जेब से भी किया है। दूसरी बात आपने बात की, अच्छा हुआ इस्माइल राव साहब भी यहाँ आ जाते हैं, अनवर सयाल साहब भी आ जाते हैं, जिनको माशाल्लाह अनवर सयाल साहब वो महल बनाना आता है। इनके बाथरूम की टूटी भी सोने की है, कमोड का कवर भी सोने गोल्ड प्लेटेड है अनवर सयाल का। लेकिन कल जब पूछा कि जी भुट्टो का नारा क्या था, उन्होंने कहा रोटी पर कपड़ा और मकान। वो के वो भी नहीं मिला, साला रोटी भी गई, कपड़ा भी उतर गया, बेचारा वो पोतरा बांध के घूम रहा है इस वक्त। वो बेचारा रोजी उसको पता ही नहीं, भुट्टो के लोग ही नहीं है।
उनको रोटी रोजी वाले लोग हैं इस वक्त सिर्फ, मतलब उसको रोटी रोजी चल रही है उसकी, तो वजीर साहिबान रोटी रोजी वाले हैं, उनकी रोटी रोजी चल रहे हैं। जो जूते पॉलिश करते हो, पर्स उठाते हो, वो क्या वजीर हो गया? मैं आता हूँ, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध के बेटे हैं, हम पाकिस्तान के बेटे हैं। सिंध का दर्द हमसे ज़्यादा किसी और को नहीं हो सकता, चूँकि इस 13 साल में इन्होंने सिंध को लूटा है। अब आते हैं पानी की बात करते हैं, वाटर। ये इतनी कोई नज़रियाती जमात से ये वो जमात बन गई है जो सिर्फ इश्यूज़ को उजागर करके अपनी ज़िंदा रहना चाहती है, जबकि सिंध के अवाम आजकल पीपल्स पार्टी को सिंध के गोठों को पे कब्ज़ा करने के इशू पर उन्होंने इनको फारिग कर दिया है। पानी का मसला ये है जी, पानी का बड़ा आसान फार्मूला है, जो कि बिलावल जरदारी का फार्मूला है, इस बहके हुए बच्चे का फार्मूला है, खुद समझ नहीं आ रहा है। बिलावल जरदारी का फार्मूला था कि बारिश होता है तो पानी आता है, बारिश ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा आता है, लेकिन पूरा फार्मूला भी है। जनाब ये भी बता देते बिलावल साहब कि जब बारिश कम होता है तो पानी कम आता है। इस दफ़ा जो वाटर इशू रहा, शॉर्टेज रही, दो वजूहत थी उसकी। नंबर 1, शॉर्टफॉल ऑफ रेन्स, बारिशें कम हुई, पानी कम आया, और जो मेल्टिंग हुई ग्लेशियर्स पे वो देर से स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से पानी का एक रौला बना था। लेकिन असल मामला क्या बनता है जब पानी सिंध में दाखिल होता है? आज मैं अभी सुबह आ रहा था, मैंने देखा कि जी बेगारी शाख के लोग रोडों पर थे, फुलेली शाख के लोग रोडों पर हैं, नसीर वाह के लोग रोडों पर हैं, पट फीडर के लोग रोडों पर हैं, घोटकी फीडर के लोग रोडों पर हैं। मुझसे ज़्यादा मैं क्लेम कर रहा हूँ मीडिया के सामने, कोई एक इंडिविजुअल जो पूरे सिंध में जाता कोई और नहीं है। मैं 15-20 दिन रहता ही भी आवाम के बीच में हूँ। सिंध में पानी जाने के बाद सिंध की ये सरकार जो है, सिंध की हुकूमती माफिया सिंध के पानी को चोरी करती। सिंध में सुप्रीम कोर्ट के 2013 के ऑर्डर्स के बावजूद 321 एक और हज़ारों डायरेक्ट आउटलेट्स जो हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट पाइप लगे हुए होते हैं, दिक्के लगे हुए होते हैं, जो कि ये गरीब को पानी नहीं मिलता है, अमीर को पानी मिलता है। और ये रिपोर्ट्स हमने शेयर की हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी हो रही है सिंध में। एक तरफ आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, एक तरफ घोटकी फीडर भरी हुई जा रही थी, उसके साथ ही चंद शाखें खुश्क पड़ी हुई थी। सिंध में है जिसकी लाठी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है, जोरावर का कानून है। सिंध में पुष्ट जो टेल के आबादगार हैं उन्हें पानी नहीं मिलता है। ये जो बड़े सरकारी आबादगार हैं उन्हें पानी मिलता है। ये ड्रामेबाजी करने के लिए, ये टोपी ड्रामे के लिए यहाँ आते हैं। अब आइए कि मैंने आवाज़ उठाई या नहीं उठाई। जब ये सिंध का शोर मचा, प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग बुलाई। सिंध का इरीगेशन मिनिस्टर सिंध के आए, पंजाब के इरीगेशन डिपार्टमेंट आया, इरसा आया, वापडा आया। उसमें तय किया कि न्यूट्रल इंजीनियर्स, न्यूट्रल एम्पायर्स, न्यूट्रल टीम बनाई जाए, मॉनिटरिंग टीम्स, जो कि सिंध से, पंजाब से, इरसा वापडा की टीम्स हो, जो कि जाके मुआयना करें। पंजाब ने टीम दे दी, इरसा ने टीम दे दी, लेकिन सिंध ने अपने इंजीनियर्स मुतय्यन नहीं किए। चूँकि अगर न्यूट्रल टीम मुतय्यन होती तो पता चल जाता कि जब फुलेली शाख में पानी जाता है तो नीचे बदीन में क्यों नहीं जाता है, जब नसीर वाह में पानी जाता है तो टंडो लयार में क्यों नहीं जाता है, जब पट फीडर में पानी जाता है तो कंदकोट कश्मीर में क्यों नहीं जाता है, जब घोटकी फीडर में पानी जाता है तो घोटकी के छोटे लोगों में क्यों नहीं जाता है। उसमें प्राइम मिनिस्टर यही कर सकता था। उन्होंने बुलाया, उन्होंने बिठाया, उन्होंने सुना। जबकि ये तो प्राइम मिनिस्टर का जो वजीर है, ये तो पटेवाला भी हैसियत नहीं रखता, इसको तो चौकीदार भी ना रखे, वो नहीं पगड़ी बना के बेचारे खड़े होते। इस अनवर सयाल की तो वो हैसियत भी नहीं है। फिर भी उसको बुलाया कि चलो सिंध का वजीर है, लेकिन उसने वहाँ जाके न्यूट्रल एम्पायर्स नहीं बनाए। सिंध में पानी चोर सिंध की हुकूमत है। सिंध का बाकी जो शॉर्टेज है वो पंजाब में भी है। और हम हाँ, एक एक बूंद मैं बताना चाहूँ, एक बूंद भी अगर सिंध का कोई रोका जाएगा, सिंध की जंग हम लड़ेंगे, ये चोर क्या लड़ेंगे। शेख साहब, दो क्वेश्चन है बेसिकली। वफाक में आपकी मुलाकातें भी हो रही, दो इश्यूज जो है वो इस वक्त अहम है। एक तो ये कि एमक्यूएम के जो फेडरल मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि सिंध के मसाइल का हल जो है वो गवर्नर राज में। तो आया आपकी वफाक में इस हवाले से कोई बात हुई? जबकि दूसरी बात ये कि सिंध हुकूमत ने क्लेम किया है कि जो बैरियर टाउन के पैसे मिल रहे हैं उसमें से जो है वो उनको हिस्सा दिया जाए। तो अटॉर्नी जनरल से भी आपकी कोई मुशावरत हुई होगी, तो इस पर वफाक का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, एक तो आपने कहा कि एमक्यूएम का जो मुतालबा है गवर्नर राज का, इसकी हम पार्शली एक चीज़ की हिमायत करते हैं कि जो सिंध में निज़ाम चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा, जो सिंध में हुकूमत चल रही है वो ठीक नहीं चल रही है। सिंध में गवर्नर राज तो फिर भी आइन के अंदर उसका वो मौजूद होता है, ऑप्शन मौजूद है। सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप चल रही है।
सिंध में डिक्टेटर्स हैं, सिंध में जंगल का कानून है। सिंध में सूरत हाल ये है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो लोग कहते थे कि जी अपोजिशन लीडर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए, इस्लामाबाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चलता है, सिंध में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी COD इस्लामाबाद तक रहता है। जब वो घोटकी क्रॉस करता है वो COC बन जाता है, चार्टर ऑफ करप्शन बन जाता है, चार्टर ऑफ करप्शन है। और COD वहाँ चलाते हैं, वो चार्टर ऑफ डिक्टेटरशिप बन जाता है कि आज सिंध में PAC में कोई मेंबर हमारा नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, स्टैंडिंग कमेटीज़ में PTI नहीं है, अपोजिशन नहीं है। हत्ता कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि बजट स्पीच विदाउट द स्पीच ऑफ अपोजिशन लीडर पास हो गया हो। तो मैं कहना चाहता हूँ MQM इस निज़ाम से छुटकारे की बात कर रही हो। हम भी कहते हैं इस वक्त तो ये इस चोर हुकूमत से, इस वो हुकूमत जिसने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। 8,900 अरब रुपए आए हैं जनाब अली, 8,900 अरब रुपए सिंध में जो NFC अवार्ड के तहत और लोकल रेवेन्यूज़ के तहत गए हैं। उसमें 1400 अरब की करप्शन, ऑडिटर जनरल रिपोर्ट करता है कि 1400 अरब की करप्शन है। और ये ऑडिटर जनरल की वो बुक्स असम्बली में ले नहीं करते हैं। सिंध का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं, सिंध का, कि 44% करप्शन हुई है डेवलपमेंट में। 1.6 ट्रिलियन में से 40 डेवलपमेंट साइड, 8.9 ट्रिलियन फुल बजट कंप्लीट बजट, ओनली 1.6 ट्रिलियन डेवलपमेंट साइड, 44% चली गई करप्शन के अंदर। PND रिपोर्ट करता है। इट मीन्स कि तकरीबन 2000 अरब से ज़्यादा ये तो पेपर्स के अंदर है। बाकी जो ओमनी की करप्शन, जरदारी ग्रुप की करप्शन, जाली अकाउंट की करप्शन, दैट इज़ अनदर थिंग। इन्होंने सब्सिडी के नाम पे चोरी की है। इन्होंने ट्रैक्टर, गरीब को ट्रैक्टर देने के लिए बुलाया और उसके बाद राशन के नाम पे लोगों को बुलाया और ट्रैक्टर उनके नाम पे लेकर पंजाब में बिकवा दिए। मुराद अली शाह रेफरेंस होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हुए, रेफरेंस होने के बावजूद। सिंध का जहाज टैक्सी की तरह चल रहा है 13 साल से। मैं कल देकर आया हूँ, पूरा रिकॉर्ड निकल, केस करेंगे और पूछेंगे कि कौन सा डिजास्टर आया था। वज़रा जहाज मांग सकते हैं वज़ीर आला से, अगर कोई डिजास्टर हो, कोई तूफान आ जाए, कोई जलजला आ जाए, एमरजेंसी आ जाए। कश्मीर इलेक्शन में कोई जलजला आ गया था, कश्मीर में कोई एमरजेंसी आ गई थी, कश्मीर में। कश्मीर की कैंपेन के लिए सिंध के अवाम के पैसे का पेट्रोल और जहाज़ इस्तेमाल हो रहा है। मैं कहता हूँ सिंध को तबाह बर्बाद जिस तरह इस ख़ानदान ने कर दिया है, मैं कहना चाहता हूँ बेनज़ीर भुट्टो की रूह भी माफ़ नहीं करेगी इनको। और आपने कहा बैरिया टाउन, अब आइए जी, 1100 अरब का पैकेज, प्रोजेक्ट्स पैकेज में उसको नहीं कहता, प्रोजेक्ट, जिसमें 62% जो हमने देना था एंड 38% पीपल्स पार्टी ने करना था। हमारे ज़िम्मे जो काम आए थे K4, नाले, फ्रेट टर्मिनल, ग्रीन लाइन एंड KCR। सबसे पहले इमरजेंसी में नालों का काम स्टार्ट हुआ। NDMA ने नालों पर काम स्टार्ट कर दिया, अरबों रुपए नीचे देकर वफाकी हुकूमत की जानिब से। गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाले पे काम 70% हो गया। NDMA करा रहा, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो करवा रहा है थ्रू FW और दीगर इदारों के ज़रिए। काम हो गया 70%। चलिए मीडिया को भिजवाएं। 41 नाले उस वक्त जो ठेका लिया था, वो एग्रीमेंट है कि वो सिंध गवर्नमेंट ने साफ़ करने हैं। और 500 के करीब छोटे जो नालियाँ शालियाँ हैं जो DMC KMC की, वो भी सिंध गवर्नमेंट ने करनी थी। मेगा काम हमने करना था, हमारे अरबों रुपए से काम स्टार्ट हो गया, अभी तक एक स्टार्ट नहीं हुआ। अब आता है बैरिया टाउन। बैरिया टाउन के पैसों पर ये ऐसा ही है कि जी एक चोर ने चोरी की, पुलिस ने पकड़ा, अदालत ने चोरी रिकवर करा के दे दी, और दोबारा चोर आए कि जी मेरी तो सामान वापस दो ना, मेरे घर से रिकवर हुई है। मतलब ऐसा ही है ना, बैरिया टाउन में इन्होंने करप्शन करके अब्बा जान की ज़मीन समझ के हवाले कर दी बैरिया टाउन के। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाकर पैसे वापस लेकर दिए। अब दोबारा जिस चोर ने चोरी कराई और जिस मुराद अली शाह के दौर में ये ज़मीनें बैरिया टाउन को गई, दोबारा उसी मुराद अली शाह को दे दें कि दोबारा वो चोरी में लगा दें। बैरिया टाउन का पैसा सिंध का पैसा है, सिंध में लगना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वफाक खुद लगाएगी, नहीं तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी सिटिंग या रिटायर्ड सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की सरबराही में कोई वो बनाए, कोई कमेटी बनाए, कोई कमीशन बनाए, जिसका वफाक का पैसा उसकी निगरानी में सिंध के अवाम पे खर्च हो। हमारी किताब में दो हैं। सिंध हुकूमत कहती है कि हम सिंध हैं, हम कहते हैं कि सिंध हुकूमत सिंध नहीं है। सिंध ये 5-6 करोड़ अवाम सिंध है, उनके लिए हम मौजूद हैं। सिंध हुकूमत ये 100-200 लोगों का एक करप्ट लोगों का टोला है, जिसमें सिर्फ सूबाई असम्बली की 2 सीटों पर बैठे हुए, 2 फ्रंट लाइन्स पर बैठे हुए लोग, उसके अलावा पीछे सारे मासूम हैं। तो इंशाल्लाह
बैरिया टाउन का पैसा सिंध पे लगेगा, सिंध के चोरों को नहीं दिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू, आपका बड़ा थैंक यू। मुझे पता है ये सब, हम लोग बात तो करते हैं।